ਹੈਲੋ ਵੀ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਸਿੰਪਲੈਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੂਅਲ ਫੇਜ਼ ਸਿੰਪਲੈਕਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਕਸ ਜ਼ੈਡ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਕੋਈ ਫਰਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਬਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਟੂ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮੈਕਸੀਮਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਲੈਸ ਦੈਨ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਦੈਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਸਲੈਕ ਸਰਪਲਸ and artificial variables to convert linear inequalities into equations, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਾਂ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਸਰਪਲਸ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੈ ਲੈਸ ਦੈਨ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਦਾ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਐਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੀ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰੀਏ। 3x1 plus x2 plus 4x3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਦੈਨ ਆ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੱਸ s1। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 600। ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2x1 plus 4x2 plus 2x3 ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਆ ਗਿਆ 480। ਨੈਕਸਟ 2x1 plus 3x2 plus 3x3, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਇਹ 'ਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਐਡ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 540। ਤਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸ ਜ਼ੈਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਦੇਖੋ। ਉਹ 'ਚ 2x1 plus 3x2 plus 4x3 ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲਓ, ठीक है जी।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਲੈਕ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ठीक है ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸਲੈਕ ਤੇ ਸਰਪਲਸ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਦੋ ਹੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਰਪਲਸ ਸਲੈਕ ਇੱਕ ਸਰਪਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜ਼ੀਰੋ ਅਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ -m ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ -m ठीक है जी -ma1 -ma2 ਤਾਂ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲੈਕ ਸਰਪਲਸ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਪਲਸ ਸਲੈਕ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਲਏ ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਟੇਬਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਟੇਬਲ वन ठीक है जी तो सिंपलेक्स टेबल स्टूडेंट्स वन ਆਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲਮਸ ਬਣਨਗੇ बेसिक वेरिएबल्स फिर सॉल्यूशन वैल्यूज फिर जिन्ने भी थोड़े ऑब्जेक्टिव फंक्शंस वेरिएबल है वो सारे आप मैंशन करांगे जिमें कि x1 x2 x3 s1 s2 a1 a2 सारे वेरिएबल आप मैंशन करते ठीक है जी तो इत्थे स्टूडेंट्स आप लिखांगे cj ये कोएफिशिएंट्स ਨੂੰ रिप्रेजेंट करूगा ठीक है तो हुण कोएफिशिएंट देखो जेड़ा ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ਉਹਦੇ कोएफिशिएंट की है x1 ਦਾ कोएफिशिएंट 2 ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ x2 ਦਾ कोएफिशिएंट की है 3 ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਚੱਲੋ 3 ਦੈਨ ਇਹਦਾ 4 ਹੈ ਜੀ s1 ਦਾ 0 ਇਹਦਾ 0 ਇਹਦਾ -m ਇਸ ਦਾ ਵੀ -m ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ठीक है तो जिवें आ थोड़ी फस्ट है ये सैकेंड है ये थर्ड आ तो हुण तुसीं ये देखो फस्ट इक्वेशन दे विच तुहाडे कोल किहड़ा वेरीएबल आ तुसीं किस वेरीएबल्स नूं आइडेंटिफाई करना है स्लैक सरप्लस ते आर्टिफिशियल तो पहली इक्वेशन तुहानूं की मिल गया स्लैक वेरीएबल मिल गया तो तुसीं वो बेसिक वेरीएबल की जगह ते लिख दो s1 ठीक है जी फिर ये सारी इक्वेशन जिहड़ी हैगी आ ठीक है इहनूं इस तरह लिखा जाऊगा तो सोल्यूशन वैल्यू की जगह पे स्टूडेंट्स आ इक्वल टू वाली वैल्यू आऊगी ठीक है 600 ठीक है जी तो हुण x1 का की कोएफिशिएंट है 3 है जी x2 का कितना है जी 1 है ठीक है x3 का कितना हैगा देन 4 s1 का कितना हैगा जी 1 s2 a1 a2 इस दे विच नहीं है इस करके आपां 0 0 उत्थे पुट कर दांगे हुण आपां सैकेंड रो ते पहुंचे सैकेंड रो दे विच बेसिक वेरीएबल की जगह ते की आऊगा देखो इत्थे अपने कोल सरप्लस वेरीएबल भी है ते आर्टिफिशियल वेरीएबल भी है जदों अपने कोल सरप्लस ते आर्टिफिशियल ठीक है दोनों वेरीएबल्स होण तां आपां बेसिक वेरीएबल की जगह ते आर्टिफिशियल वेरीएबल लिखांगे तां आपां a1 लिख लिया ठीक है जी बाकी फिर सोल्यूशन वैल्यू च की आऊगा SV स्टैंड्स फॉर सोल्यूशन वैल्यू ठीक है उत्थे स्टूडेंट आऊगा तुहाडे कोल 480 ठीक है जी इक्वल टू वाली वैल्यू वो आएगी ठीक है बाकी वैल्यूज जिवें x1 है उसके जो कोएफिशिएंट्स है वो नीचे लिख दो जिवें x1 का कोएफिशिएंट कितना है जी 2 उस तो बाद x2 का जी कितना है देन 4 है जी x3 का कितना है जी 2 आ उस तो बाद स्टूडेंट्स s1 च नहीं है s2 ते a1 है ठीक है s1 ते की आ जाऊगा 0 आ जाऊगा s2 ते की आऊगा जी -1 ठीक है देन a1 ते की आ गया जी 1 a2 नहीं है 0 आ गया ठीक उस तो बाद तुसी क्या करो अगली इक्वेशन ते आओ उस दे विच कल्ला आर्टिफिशियल वेरीएबल है बेसिक वेरीएबल की जगह ते आर्टिफिशियल वेरीएबल लिख दो
A2 और इक्वल टू वाली वैल्यू ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੈल्यू ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ 540। ठीक है स्टूडेंट्स, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ 2 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ 3, ਨੈਕਸਟ V3 ਹੈ स्टूडेंट्स ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, देन ਕੱਲਾ A2 है, S1 भी नहीं है, S2 भी नहीं है, A1 भी नहीं है, A2 है, तो ਉੱਥੇ 1 आ गया जी। ठीक है, ਤਾਂ स्टूडेंट्स ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ क्या करना ਹੁੰਦਾ है, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ क्या ਚੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲਕੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਏ। ठीक है जी, ਲਓ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ZJ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਊਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ZJ। ठीक है जी, तो ZJ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਲਿਖੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਵੀ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ S1 ਦੀ ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰੋ 0। ठीक है जी, A1 ਦੀ क्या है जी -m, A2 ਦੀ ਵੀ क्या है -m, यानी कि जो तुसी वैल्यूज इस ऊपर लिखिया हुई ने वो इस साइड भी आउणगियां, यानी कि कोएफिशिएंट इस साइड भी लिखने हैं और डाउन जेडे वेरिएबल आ रहे हैं इस साइड भी लिखने हैं। हुण तुसी ZJ कैलकुलेट करना है तो ZJ लिए की करना हुंदा देखो, तो देखो स्टूडेंट्स ZJ कैलकुलेट करांगे। ZJ लिए तुसी आ काम करना है, जेडे आ वैल्यूज ने, ठीक है, कोएफिशिएंट दी वैल्यूज ने, जिवें 0 × 600 कितना बन गया जी 0 × 600 0 बन गया, -m × 480 तो -480m बन जूगा। ठीक है जी, -480m, -m × 540 तो -540m बन जूगा। उस तो बाद स्टूडेंट मल्टीप्लाइकेशन होकर वैल्यूज आ गई 0 + -480m -540m, तो ਉਹਦਾ ਸਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ठीक है जी, तो ਇਹ ਸਮ स्टूडेंट ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ठीक है, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, 0 × 3 यानी कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਨੀਚੇ ਸਮ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ 0 × 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 0, -m × 2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ -2m, तो -m × 2 फिर थोड़े को -2m आ गया। हुण 0 + -2m + -2m, तो ये स्टूडेंट थोड़े को आ जाऊगी जी वैल्यू, दैट इज आ जाऊगी जी 4 - 4m आ गया थोड़े को। ठीक है जी, ऐ सिमिलरली फिर तुसी अगे मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी, तो इन दिस वे जिवें 0 × 1 0 आ गया, -m × 4 तो ये आ गया जी -4m, -m × 3 ये आ गया -3m, -4m ते -3m अपने को कितना आ गया जी -7m। ठीक है जी, क्लियर, एंड सो ऑन। ठीक है जी, हुण 0 × 4 0 हो गया जी, -m × 2 -2m, -m × 3 -3m, तो इत्थे स्टूडेंट्स आ जाऊगा अपने को -5m। ठीक है जी, हुण 0 × 1 0 हो गया, -m × 0 0 हो गया, -m × 0 0 हो गया, तो ओवरऑल अपने को आ गया सम करके 0। हुण 0 × 0 0, -m × -1 तो अपने को m आ जाऊगा जी m, -m × 0 0 आ गया, तो 0 + m + 0 अपने को आ गया जी m आ गया। ठीक है जी, क्लियर। तो उस तो बाद स्टूडेंट्स देखो 0 × 0 0, -m × 1 -m, तो -m × 0 0, तो थले प्लस होके की आ जाएगा जी -m। सिमिलरली स्टूडेंट्स इत्थे 0 आ जाऊगी, इत्थे 0 आ जाऊगा, इत्थे -m प्लस करके अपने को -m आ गया। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अपने को ZJ ਦੀਆਂ वैल्यूज आ गई। हुण आपां की करांगे, हुण आपां इत्थे निकालांगे CJ - ZJ, यानी कि आ चीज आप जी है निकालांगे हुण। ठीक है जी, CJ - ZJ, तो देखो स्टूडेंट CJ - ZJ की है, CJ की वैल्यू कितनी है 2 दे विचों ZJ कितना हैगा जी
-4m। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4m ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 2 + 4m ਆ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 7m ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 3 + 7m। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5m ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 4 + 5m। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 0 ਚੋਂ 0 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0, 0 ਚੋਂ m ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ m। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। -m ਚੋਂ -m ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 0, -m ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ -m ਦੈਨ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ CJ - ZJ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੰਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟ ਲਾਰਜੈਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਫਰੋਮ CJ - ZJ। यानी कि जो साडा CJ - ZJ आ वो चो आपां लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्टूडेंट्स वो लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू तुसीं किवें चेक करनी है, तुसीं जिथे जिथे m की वैल्यू पॉजिटिव आ उत्थे आ जाओ। इत्थे m पॉजिटिव आ, इत्थे m पॉजिटिव है, इत्थे m पॉजिटिव है। हुण देखो इत्थे हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू किहड़ी है, वो हैगी जी 7m वाली, क्योंकि 5m है, ये 7m है, 4m है। तो हाईएस्ट इज दिस वन। ठीक है जी, क्लीयर ना आ वाली। तो हुण स्टूडेंट्स तुहाडे कोले जदों आपां लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आपां CJ - ZJ चों सिलेक्ट कर ली, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਮ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਾਲਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੇਰੀਏਬਲ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ x2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ CJ - ZJ ਚੋਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਪਿਕ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ R ਇਨਕਮਿੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਜ਼ x2, यानी कि साडा x2 इनकमिंग वेरीएबल आ। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स देखो इनकमिंग वेरीएबल तो बाद असीं आउटगोइंग वेरीएबल कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। उहदे लई क्या करांगे, उहदे लई स्टूडेंट्स इत्थे लास्ट ते जाके एक कॉलम बनूंगा, जिस कॉलम नूं असीं बोलदे हां मिनिमम रेशो। मिनिमम रेशो दा एक कॉलम बनना है। ठीक है जी। उसका हैडिंग है मिनिमम रेशो। और मिनिमम रेशो किस तरह कैलकुलेट होएगी, जेड़ियां सोडियां सोल्यूशन वैल्यूज है ना स्टूडेंट्स, आ वालियां सोल्यूशन वैल्यूज है। ठीक है जी, क्लीयर। जेड़ियां सोल्यूशन वैल्यूज आ, इन्हां सोल्यूशन वैल्यूज नूं बिल्कुल इन्हां दे सामने जेड़ा कॉलम तुसीं सिलेक्ट कीता, देखो आ कॉलम सिलेक्ट होया होया है, जेड़ा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है उन्होंने असीं बोलते हैं स्टूडेंट्स पाइवट और की कॉलम। ठीक है, उन्होंने पाइवट और की कॉलम कहते हैं। तो सोल्यूशन वैल्यू से बिल्कुल सामने जेड़े पाइवट कॉलम दियां वैल्यूज ने उन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू से डिवाइड की चलो, जिवें 600 डिवाइडेड बाय की होगा 1, तो अपने को की आ गया जी 600। फिर 480 डिवाइडेड बाय की आ गया 4, तो अपने को आ गया जी 120। ठीक है जी। फिर 540 डिवाइडेड बाय की आ गया 3, तो अपने को आ गया जी 180। ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट्स आप मिनिमम रेशियो निकाल ली, तो हुण इत्थे स्टैप नोट करो। सब तो पहला CJ - ZJ निकालन तो बाद आपां हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू लैनी है। तो हुण इत्थे ये भी क्लैरिटी नाल दसदा स्टूडेंट्स, जेकर सोडा क्वेश्चन हैगा मैक्सिमाइजेशन दा तो ये तां तुसीं इत्थे लैनी है हाईएस्ट पॉजिटिव, ते जे क्वेश्चन हुंदा मिनिमाइजेशन दा दैन तुसीं इत्थों लार्जेस्ट नैगेटिव वैल्यू सिलेक्ट कर दे। ठीक है, ये फर्क हुंदा है। मैं क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन दा कर रहा, दैट्स वाई मैं लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू CJ - ZJ चों पिक कीती आ। ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स आपां मिनिमम रेशियो निकाल चुके हैं। तो मिनिमम रेशियो दे विचों तुसीं क्या करना है, आउटगोइंग वेरीएबल का डिसीजन लेना कि किहड़ा वेरीएबल आउटगोइंग होगा। ठीक है जी। तो उहदे लई तुसीं की करना हुंदा है, ਜਿਹੜੀ मिनिमम रेशो ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 600 120 ਤੇ 180 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ 120।
ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आ वैल्यू है जिहड़ी सिलेक्ट होगी, ठीक है। ਇਹਦੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੋ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। दैट इज कॉल्ड ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਮਿਨੀਮਮ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਥਰੂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਈ ਆ, ठीक है, जिथे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੀ ਰੋ, ठीक है जी, की रो या पाइवट रो, ठीक है जी। तो वो तो पता चलता कि थोड़ा वेरीएबल बाहर किहड़ा जाऊगा। हुण अपना जिहड़ा A1 है दैट इज आउट गोइंग वेरीएबल, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स लिख दिए A1 इज आउट गोइंग वेरीएबल। तो आउट गोइंग वेरीएबल का आपां नूं पता लग गया, इनकमिंग का पता लग गया, यही मेन चीज़ हुंदी है। तो इत्थे एक स्टूडेंट्स होर चीज़ मैं दसनी चाहूँगा जिहड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट आ। इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि जेड़ा तुसी आ 4 एलीमेंट है ना, फोकस करो 4 एलीमेंट नूं, ठीक है, आ 4 है, ठीक है जी। इहदी खासियत की है, ये पाइवट रो ते पाइवट कॉलम का सांझा एलीमेंट आ, यानी कि देखो इधरों आ पाइवट रो आ गई, आ पाइवट कॉलम आ गया, ये सांझा आ गया एलीमेंट, इनू बोलते पाइवट एलीमेंट, ठीक है जी। क्लीयर ना, मैं इस साइड लिख देना स्टूडेंट्स, तो इनू बोलते आ पाइवट, इनू या तो आ वर्ड बोलते की एलीमेंट या इनू बोलते स्टूडेंट्स पाइवट एलीमेंट, जो मर्जी नाम दे दो इनू। सो दिस इज योर पाइवट एलीमेंट। तो इत्थे स्टूडेंट्स तुहाडा एक टेबल कंप्लीट हो गया। हुण आपां सैकेंड टेबल बनाना है, तो इत्थे एक गल हमेशा याद रखियो, जिहड़ा सैकेंड टेबल बनूगा ना वो फर्स्ट टेबल ते बेस्ड होगा, जिहड़ा थर्ड टेबल बनूगा वो सैकेंड टेबल ते बेस्ड होगा। ये हुण साडा सारा फर्स्ट टेबल जिहड़ा हैगा वो कंप्लीट आ, जिहदे विच सानूं ये पता चल गया मेनली असीं दो इनफॉर्मेशनस लैणियां ने कि किहड़ा वेरीएबल असीं इंट्रोड्यूस करना है ते किहड़े वेरीएबल दी जगह ते करना है। हुण A1 दी जगह ते किहड़ा आऊगा, X2 आऊगा, ठीक है जी। क्लीयर, इनकमिंग X2 एंड आउटगोइंग इज A1। तो अगले टेबल च आपां एडजस्टमेंट्स करांगे, तो इनू अरेज कर दिए, फिर आप एडजस्टमेंट्स करते हैं। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, हुण आपां बनाइए सिंपलेक्स टेबल नंबर 2। लो जी, सिंपलेक्स टेबल 2। तो सारा फॉर्मेट स्टूडेंट सेम रहूगा, ठीक है। जिहड़ा आला हैगा बेसिक वेरीएबल, सोल्यूशन वैल्यूज, ये सब चीज़ां तुसीं एक बार एज इट इज जिहड़ियां ने मैंशन कर दो, ठीक है। जिवें अपने कोले बेसिक वेरीएबल्स, दैन सोल्यूशन वैल्यूज, ठीक है जी, दैन X1 X2 X3। इतना एक चीज़ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट जिहड़ी नोट करनी आ, अपना किहड़ा वेरीएबल आउटगोइंग आ, अपना आउटगोइंग वेरीएबल हैगा A1। तो हुण जदों मैं सिंपलेक्स टेबल नंबर 2 बनाऊंगा तो जिहड़ा आ वाला हैगा ना, आ ए कॉलम है, इनू मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है जी। इनू आपां बाहर कर देना, एलिमिनेट कर देना, क्योंकि वेरीएबल आ जे तां देखो स्लैक वेरीएबल बाहर जाए फिर तां ओहदा कॉलम आपां दोबारा भी लिखते हैं, पर आर्टिफिशियल वेरीएबल एक बार बाहर चला गया ना तो उन्होंने अगले टेबल च कंसिडर नहीं करना। उहदे वाला कॉलम जिवें आ वाला कॉलम है ना A1 दा, इनू मैं लिखूंगा नहीं हुण उत्थे, ठीक है। आ देखो X1 X2 X3 S1 S2 ते A2। देखो स्टूडेंट्स हुण मैं की नहीं लिखिया, A1 नहीं लिखिया, क्यों नहीं लिखिया, क्योंकि वो आउटगोइंग वेरीएबल आ, देखो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो हुण स्टूडेंट्स इत्थे वही चीज़ CJ ऊपर वैल्यूज लिखो, X1 दी वही वैल्यू 2 आ, ठीक है जी। दैन स्टूडेंट्स 3 आ, ठीक है जी। उस तो बाद X3 दी 4 है जी, ठीक है। A 0 आ, A 0 आ, A माइनस M आ, ठीक है जी। हुण बेसिक वेरीएबल स्टूडेंट्स देखो S1 तां एज इट इज आ, लिख दो। A1 दी जगह ते किहड़ा वेरीएबल आ गया उन्होंने रिप्लेस करो, A1 दी जगह ते किहड़ा इनकमिंग वेरीएबल सी। तां स्टूडेंट्स एक गल दा नोटिस करने आ, जिहड़े वेरीएबल्स इनकमिंग आउणगे वो इत्थे चेंज होणगे, ते चेंज कित्थे होणगे, जिहड़ा वेरीएबल आउटगोइंग होऊगा। हुण A1 आउटगोइंग है, इहदी जगह ते लिख दो X2 आ गया जी, X2, ठीक है। ते A2 एज इट इज रह जाऊगा।
ਹੁਣ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੈ, S1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 0, X2 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ 3। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ S1 X2 ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, A2 ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ -m। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਟੇਬਲ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੇਬਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੇਬਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੇਬਲ ਹੈ ਸਿੰਪਲੈਕਸ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ 2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਿਖੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਊਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਪੁਰਾਣੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਈਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਰੋ ਫਿਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਇਆ, ਸੈਕੰਡ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ 2 ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਟੇਬਲ, ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਸੈਕੰਡ ਰੋ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਪਾਈਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ। ਪਾਈਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਜੀ 4। ਇਟ ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਰੋ ਨੂੰ 4 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ 480 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 120। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1/2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 4 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 ਆ ਗਿਆ ਜੀ 1। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 1/2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 0 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ -1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 ਤਾਂ -1/4। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ A1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਂ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ, ਅਗਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ 0। 0 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੀ 0 ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਸਟ ਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫਸਟ ਰੋ ਚੱਕ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਚੱਕ ਲਓ। 600 ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ 3 ਆ, ਦੈਨ 1 ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਵਰਟੀਕਲੀ ਲਿਖ ਲਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਹ ਰੋ ਫਿਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, that is 600। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, then 3 ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, then 1 ਆ, then 4 ਆ, then 1, then 0 ਆ, then ਅਗਲਾ ਲਾਸਟ ਪਿਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 0। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਆ ਨਾ ਇਸ ਰੋ ਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੋ ਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਰੋ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਲਓ ਜੀ, ਕਰ ਦਿਓ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਸ। -480 -2 ਮਾਈਨਸ ਕਿਆ ਜੀ 4 ਮਾਈਨਸ ਕਿਆ ਜੀ 2 -0। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ 0 -0। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ। ਦੇਖੋ S1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਗੋਇੰਗ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆ ਉਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ, ਬਟ ਮਾਈਨਸ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਊਗੀ ਜੀ
ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੀ रो आ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ रो ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਕਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ 1 ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹੈ ਆ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ 1 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 1 ਲਿਖ ਲਓ ओवर लिख लो जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਪਾਈਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਫਸਟ रो ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ रो ਇਸ रो ਦਾ ਸਿਲੈਕਟਡ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਓਵਰ ਪਾਈਵਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ 600 माइनस 4 इन 80 बाय 1 बाय 4 आ 4 जो कटिया जाऊगा तो 100 कितना बन जाऊगा जी 20 बन जाऊगा हुण 600 चो 120 माइनस किते किन्ने हो जाएंगे स्टूडेंट्स को 480 ठीक है जी 480 बन गए तो इत्थे लिख दो जी 480 समझ आई सिमिलरली इत्थे की बन गया 3 माइनस 2 बाय 4 आ कितना बन गया जी कैंसल हो गया तो ये 1 बाय 2 है 3 आ एलसीएम ले लो 6 बन गया 6 चो 1 ठीक है 5 बाय 2 तो इन दिस वे स्टूडेंट्स ये सारी कैलकुलेशन होनी है जे 1 आ 4 ना 4 कैंसल 1 चो 1 माइनस तो आ गया अपने को 0 एंड सो ऑन आप सारी जी कैलकुलेशन करके इतने वैल्यूज पुट कर देंगे ठीक इंपॉर्टेंट चीज स्टूडेंट्स की है जी नोटिस करनी है जिमें सब तो पहला किहड़ी रो फिल होगी जिस नवा वेरीएबल आया वो किवें फिल हुई पुराने टेबल दी उही रो नू पाइवट एलीमेंट ते डिवाइड करके लिख दो ठीक है जी हुण जेहड़ियां बाकी रोज ने उन्हां नू किवें फिल करना है जेहड़ियां रोज ने जिवें हुण S1 मैं इधरले पासे फिल कर रहा ओहदे एलीमेंट्स एज इट इज लिख दो जिवें हैगे निशान पा दो माइनस का माइनस किनू करना है जी चो वेरीएबल बाहर जा रहा है यानी कि जेहड़ी थोड़ी सिलैक्टेड रो आ ठीक है सिलेक्टेड रो थोड़ी सेकंड है सेकंड दे एलीमेंट माइनस कर दो पर उन्होंने सीधे माइनस नहीं करना उन्होंने एक रेशो नाल मल्टीप्लाई करके माइनस करना है और वो रेशो की है रेशो हैगी है सिलेक्टेड एलीमेंट ऑफ रो ओवर पाइवट एलीमेंट सिलेक्टेड एलीमेंट ऑफ रो किहड़ा सी 1 ठीक है जी पाइवट एलीमेंट किहड़ा सी 4 तो 1 बाय 4 थोड़ी रेशो है उहदे नाल मल्टीप्लाई करके माइनस करना है ठीक है जी तो हुण स्टूडेंट्स इहनूं मैं कैलकुलेट करदा बट मैं नाल दी नाल सोनू दूजी भी समझा दा ताकि सोनू होर क्लैरिटी हो जाए देखो हुण आपां आ रो फिल करनी है ना A2 वाली तो इहदी पुरानी रो चक लो आ पई जी ठीक है 540 then 2 है स्टूडेंट्स then 3 आ then अगेन 3 then जी 0 आ ठीक है जी then अगेन 0 है जी then स्टूडेंट्स 1 है ठीक है निशान माइनस ते ठीक किनू माइनस करना है ठीक है जेडी सिलेक्टेड रो आ सीधी माइनस करो 480 ठीक है जी फिर 2 फिर कितना जी 4 फिर 2 फिर 0 फिर -1 फिर कितना जी 0 पर इन्होंने डायरेक्ट माइनस नहीं करना इन्हों एक रेशो नाल मल्टीप्लाई करके माइनस करना है हुण रेशो नाल मल्टीप्लाई कर दो जी ठीक है तो रेशो की है जी स्टूडेंट्स देखो जी और रेशो हैगी है सिलेक्टेड एलीमेंट ठीक है ऑफ रो ओवर पाइवट एलीमेंट हुण इस रो च सिलेक्टेड एलीमेंट किहड़ा सी 3 पाइवट एलीमेंट कितना है 4 तो इट मीनस इनू 3 बाय 4 ना मल्टीप्लाई करके तुसी की करना हैगा जी ठीक है जी कर दो सिंपल 3 बाय 4 ना मल्टीप्लाई करके नू तुसी जिहड़ा है सॉल्व कर दो ठीक तो जिवें हुण इत्थे देखो 480 नू 4 ते डिवाइड किया 120 नू 3 ना मल्टीप्लाई कर 360 540 जो 360 माइनस करके जो आएगा वो इत्थे आपां फिल कर दांगे हुण तुहानू मैं 1 बाय 1 सारा एक क्लैरीफाई कर दा जी किवें हुंदा ठीक है आपां नू फिल कर लईए कैलकुलेशनस करके हाँ जी भी स्टूडेंट्स फिर आप जिमें हुण आपां की कीता ये जिहड़ियां रोज ने ये फिल कर लिया जिवें मैं सॉल्व कर लिया कि आ 540 चों 480 नू 3 बाय 4 ना मल्टीप्लाई करके 180 आ गया एंड सो ये सारी मैं कैलकुलेशन करके इत्थे फिट करती ठीक है स्टूडेंट्स क्लीयर उस दस दिता कि किवें आ रहा सारा कुछ ठीक है जी हुण की करना स्टूडेंट्स फिर उवें रिपीट स्टैप ZJ कैलकुलेट करांगे किवें कैलकुलेट करांगे तरीका देखो की है ZJ कैलकुलेट करन दा
आ सोल्यूशन वैल्यूज नाल मल्टीप्लाई फिलहाल ना करो, ठीक है, इनू कोई जरूरत नहीं होंदी, ठीक है जी। हुण देखो स्टूडेंट्स 0 इंटू 5/2 तो की आ गया जी 0, 3 इंटू 1/2 की आ गया जी 3/2, माइनस एम नू मल्टीप्लाई किया 1/2 नाल तां की आ गया माइनस m/2। हुण आपां इहनूं प्लस करना है 0 प्लस 3/2 प्लस माइनस m/2 आप प्लस कर देंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू आई वो इत्थे मेंशन कर देंगे, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आउंदे उन्हां नूं प्लस करना हुंदा आपां, ठीक है जी। ऐ सिमिलरली इत्थे 0 इंटू 0 0 हो जाऊगा जी, 3 इंटू 1 3 आ गया, माइनस m इंटू 0 0 तो 0 प्लस 3 प्लस 0 तो यह सौखा है जी, ये आप सीधा ही लिख लीए कि 3 आऊगा, एंड सो ऑन। 0 इंटू 7/2 0, 3 इंटू 1/2 3/2, माइनस m नू 3/2 ना किया माइनस 3m/2। हुण 0 प्लस 3/2 प्लस करना है माइनस 3m2, यानी कि मैं करके दसना कि होगा स्टूडेंट्स, ये इस तरह होगा 0 प्लस 3/2 प्लस करांगे माइनस 3m/2 तो साइन माइनस से रह जाऊगा, ठीक है, 3m/2 तो इनू आप प्लस कर देंगे, प्लस करके थे मेंशन कर देंगे, ठीक है जी। ऐ सिमिलरली स्टूडेंट्स 0 इंटू 1 0, ठीक है, 3 इंटू 0 0, माइनस m इंटू 0 0 तो सारा कुछ 0 0 आ गया तो प्लस करके 0, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स बाकी कैलकुलेशन थोड़ा समझ आ गई, एंड सो ऑन। ये सारे कॉलम्स नू मल्टीप्लाई करके सम करके Z आप लिखांगे, बाकी स्टेप एज इट इज रहेंगे। आप उन्होंने पहला कैलकुलेशंस करके इत्थे वैल्यूज पुट अप कर दिए, देन अगे प्रोसीड करते हैं। हाँ जी भी स्टूडेंट्स, तो हम जी आप CJ माइनस ZJ निकाल लिया, किवें निकाल लिया 2 दे विचों आ वैल्यूज माइनस करके ये आ गया। हुण आप CJ माइनस ZJ चों लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू पिक करनी है, तो लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आप M वाली देखनी है जी। जिवें देखो जी स्टूडेंट्स, पहले तो प्लस के निशान देखो कित्थे कित्थे है, जिथे M की वैल्यू प्लस, एक तो आ पई जी, ठीक है, एक स्टूडेंट्स आ पई, ठीक, एक आ पई, ठीक है। तो हुण आ m/2 है, ये तो 0.5 m बन जू, ये बन जूगा 1.5 m, ये बनूगा स्टूडेंट्स 0.75। सब तो वड्डी वैल्यू फिर केड़ी बनती है, दिस वन, ठीक है जी, क्लीयर, आ बनती है सब तो वड्डी वैल्यू। तो इट मीनस साडे कोले जेड़ा ये इशारा हो गया कि x3 सोडा इनकमिंग वेरीएबल है और आ वाला कॉलम सोडा सिलेक्टेड कॉलम बन गया जी, ठीक है, दिस वन इज योर सिलेक्टेड कॉलम। तो इनू आप इत्थे इस तरह कर दिए स्टूडेंट्स, दिस इज वन इज द सिलेक्टेड कॉलम। जदों आपां नूं सिलेक्टेड कॉलम पता चल गया, दैन आप फिर मिनिमम रेशो जिहड़ा हैगा उत्ते पहुंचांगे जी, मिनिमम रेशो ते। मिनिमम रेशो किवें निकलदी है, सोल्यूशन वैल्यूज नूं उन्हां दे बिल्कुल सामने वाली जिहड़ा कॉलम सिलेक्टेड होया उहदियां वैल्यूज ते डिवाइड करके, जिवें 480 डिवाइडेड बाय 7/2 तो ये आ जाऊगा स्टूडेंट्स 480 इंटू 2 बाय 7 करके आ जाओ, ठीक है। फिर 120 डिवाइड बाय 1/2, ठीक है, तो ये आ जाऊगा स्टूडेंट्स 120 इंटू 2 करके, ठीक। फिर 180 डिवाइड बाय 3/2 तो ये आ जाऊगा 180 इंटू 2 बाय क्या जी, सोडा 3, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स हुण आप इत्थे की करना है, देखना है, सॉल्व करांगे, तो सॉल्व करके जी सब तो छोटी वैल्यू होगी आप उन्होंने कंसिडर करांगे, ठीक है जी। तो जे आप देखिए तो सब तो छोटी वैल्यू स्टूडेंट्स ए वाली आऊगी, ठीक है जी। ये अपने को जो बनूगा वो 120 बनूगा, ठीक है, क्योंकि ए आ जाऊगा जी 60, ए 120 आ जाऊगा, ठीक है, ये तो 240 बन गया, तो ये भी जी वैल्यू है स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली जी वो बनूंगी 130-40 के आसपास बनूंगी, यानी कि सब तो छोटी वैल्यू थोड़े को ए वाली आ रही है 120। ये सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स वैल्यूज ज़्यादा वड्डियां आउणगियां, कोई शक नहीं है, ठीक है जी। तो हुण मिनिमम रेशो चो आपां किहड़ी वैल्यू लैनी है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू लैनी है। लीस्ट पॉजिटिव इज 120। इट मीनस किहड़ा इशारा हो गया कि किहड़ा वेरीएबल बाहर जाऊगा, A2। तो हुण स्टूडेंट्स इस
क्वेश्चन दे विच इस टेबल दे विच आपां नूं पता चल गया कि आर इनकमिंग वेरीएबल इज x3 ते आउटगोइंग वेरीएबल किहड़ा जी a2। तो हुण स्टूडेंट्स इसे चीज़ नूं यही इन्फॉर्मेशन आपां नूं चाहीदी हुंदी है। हुण अपना अगला टेबल बनूगा। हुण स्टूडेंट्स थोड़ा सवाल होगा किन्ने टेबल बनी जाएंगे। तो स्टूडेंट जिन्नी देर तक साढ़े को इनकमिंग वेरीएबल का इशारा हो जाऊगा, जिन्नी देर तक साढ़े को CJ माइनस ZJ दे पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलदियां रहणगियां असीं चलते रहांगे। जदों साढ़े को CJ माइनस ZJ दियां सारियां वैल्यूज़ या तो 0 या नेगेटिव 0 आ जाणगियां तो असीं उत्थे क्वेश्चन रोक दांगे। उत्थे साडा सल्यूशन जिहड़ा है वो अचीव हो जाऊगा, उत्थे सानू ऑप्टिमम सल्यूशन मिल जाऊगा। ठीक है जी। तो हुण उही स्टूडेंट्स हजे आपां नूं क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू मिल रही ने इस करके असीं मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सानू पता चल गया A2 साडा आउटगोइंग वेरीएबल ते x3 साडा इनकमिंग वेरीएबल। हुण आपां नैक्सट टेबल बनावांगे इस जगह ते जिथे साडे कोले असीं ठीक है जी न्यू टेबल दे विच फिर ये एडजस्टमेंट्स करके इहनूं बनाउणे आपां। लओ जी तो स्टूडेंट्स बनाओ फिर सिंपलैक्स टेबल नंबर। ठीक है जी, सिंपलैक्स टेबल नंबर 3। ठीक है जी। तो सिंपलैक्स टेबल नंबर 3 वही स्टूडेंट चीज़ां सारियां फिर। ठीक है जी। तो बेसिक वेरीएबल सल्यूशन वैल्यूज़ x1 x2 x3। ठीक है जी, S1 S2। क्योंकि स्टूडेंट्स ने दसिया कि आर्टिफिशियल वेरीएबल A2 भी बाहर जा चुके हैं तो हुण अगले टेबल च आपां वो भी नहीं लिखांगे। मैं पहले ही कहता कि आर्टिफिशियल वेरीएबल अगर बाहर जा रहा है तो अगले टेबल च नहीं लिखना। हाँ, अगर स्लैक बाहर जा रहा है तो दैन वो अगले टेबल च लिखा जाऊगा। आर्टिफिशियल वेरीएबल अगर बाहर गया तो उन्होंने नैक्सट टेबल च इंक्लूड नहीं करना। ठीक है, तो लो जी। तो स्टूडेंट्स हम आप CJ देखिए x1 दी वैल्यूज वही जी 2, x2 की वैल्यू जी 3, x3 की वैल्यू जी 4, S1 0, S2 भी 0। ठीक है, बेसिक वेरीएबल दे विच तो हम टेबल 3 नूं प्रिपेयर करने लिए टेबल 2 देखा जाऊगा ना कि टेबल 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इत्थे अपने कोले S1 x2 A2 की जगह ते किहड़ा वेरीएबल आ गया x3 तो उत्थे x3 लिख दो। S1 की कोफिशिएंट वैल्यू की है ऑब्जेक्टिव फंक्शन च 0, x2 की की है जी 3, x3 की कितनी है जी 4। ठीक है, तो हुण स्टूडेंट्स इस टेबल नूं कंस्ट्रक्ट करने लिए उही फंडा जो मैं तुहानूं पहलां दस्सिया सीगा कि बई सब तो पहला किहड़ी रो फिल होगी जिस रो दे विच नवां एलीमेंट आया है। हुण टेबल 3 दे विच नवां एलीमेंट किहड़ा है जी दैट इज x3। तो सब तो पहला x3 वाली रो फिल होगी। रो किवें फिल होगी जिस च नवां एलीमेंट आया है वो प्रीवियस रो देखो जिहड़ी थोड़ी सिलैक्टेड रो सी दैट इज की सी स्टूडेंट्स A2 वाली यानी कि थर्ड रो सिलैक्टेड सी थोड़ी ए वाली। ठीक है, ए च हुण 3/2 सोडा की बन जूगा जी पाइवट एलीमेंट। किहड़ा एलीमेंट शाबाश पाइवट एलीमेंट। ठीक है, हुण तुसी सारी रो नूं पाइवट एलीमेंट ते डिवाइड करके इत्थे लिखना है। ठीक, थर्ड रो किवें आऊगी? थर्ड रो आएगी जिहड़ी थर्ड रो टेबल नंबर 3 दी है वो टेबल नंबर 2 नूं देख के होएगी। 180 ये सारियां वैल्यूज नूं 3/2 ते डिवाइड करके लिख दो तो इत्थे आ गया स्टूडेंट्स 120। 1/2 नूं डिवाइड करांगे 3/2 ते। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स ये आ जाऊगा अपने को 1/3। ठीक है जी, 0 डिवाइड बाय 3/2 तो स्टूडेंट्स अपने को 0 ही आ जाएगा। ठीक है जी, 3/2 डिवाइड बाय 3/2 1 आ जाएगा जी अपने को। 0 डिवाइड बाय 3/2 तो 0 आ जाएगा जी। ठीक है, हम 3/4 डिवाइडेड बाय 3/2। ठीक है जी, क्लियर। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 3/6 दैट इज 1/2। ठीक है जी, तो हुण आपां आ वालियां रोज फिल करांगे उधर अरेज कर दीए। ठीक है जी, हाँ जी भी स्टूडेंट्स फिर जिहड़ियां ये रोज ने इन्हां नूं आपां फिल करिए तो ये किवें फिल होगी जिवें आपां S1 रो फिल करते हैं तो आपां की तरीका दस्सिया सी जिहड़ी तुहाडी S1 रो आ इहनूं फिल करने वास्ते प्रीवियस टेबल की S1 रो चक लो। ठीक है जी, दैट इज है एलीमेंट 480, अगला एलीमेंट है जी 5/2, अगला एलीमेंट है 0, अगला एलीमेंट है जी 7/2, दैन है जी 1,
then 1/4। तो ये आप लेना नहीं A2 क्योंकि ये बाहर जा चुके हैं, ठीक है ये लिख ले जी। हुण आप माइनस कर देना है, माइनस किनू करना हुंदा स्टूडेंट्स, माइनस करना हुंदा है जेड़ी रो दे विच आउटगोइंग वेरीएबल यानी कि जिहड़ी तुहाडी की रो हैगी आ, जिहड़ी सिलैक्टेड रो आ, ठीक है थर्ड वन ही सिलैक्टेड रो, तो सिलैक्टेड रो दे एलीमेंट माइनस कर दो, ठीक है जी। 180 1/2 then 0 जी, then 3/2, ठीक है, then 0, then 3/4, ठीक है जी। बट माइनस करन तो पहला उन्होंने एक रेशो नाल मल्टीप्लाई भी करना हुंदा है, और सीधा डायरैक्ट नहीं माइनस करना, एक चीज़ ना मल्टीप्लाई करके माइनस करना। और वो किहड़ी चीज़ आ, वो है रेशो। रेशो मतलब सिलैक्टेड एलीमेंट ओवर, हुण इस रो सिलैक्टेड एलीमेंट किहड़ा 7/2 ते पाइवट एलीमेंट की है 3/2, तो 7/2 डिवाइडेड बाय 3/2 तुहाडे कोल की आ जाऊगा जी 7/3। तो सारे किते 7/3 नाल मल्टीप्लाई करके तुसीं की करना हैगा जी, डिडक्ट करना है, ठीक है जी। ओके, तो हुण स्टूडेंट्स आपां रो फिल करांगे 2। ये तो स्टूडेंट सॉल्व होके आ जाएंगे वैल्यूज, ठीक है, ये आप सॉल्व कर लेने, पहले लिख लीजिए। हुण आपां 2 रो करनी है, पुरानी रो चक्को किहड़ी है 2 आ वाली जी, लिख लो सारी रो पहला 2, ठीक है 120 1/2 then 1 then 1/2 then 0 then -1/4, ठीक है लिखी गई। हुण साइन माइनस था, ठीक है, माइनस करके केड़ी रो माइनस करनी है, वही जेडी सिलैक्टेड रो आ वाली अपनी सिलैक्टेड रो सीगी, ठीक है, जिहदे विच आउटगोइंग वेरीएबल आ, तो सिलैक्टेड रो नूं माइनस कर दो 180, ठीक है, -1/2 -0 -3/2 -0 -3/4। बट इसनूं डायरैक्ट नहीं माइनस करना, मल्टीप्लाई करना है, कि नाल मल्टीप्लाई रेशो नाल। रेशो किवें आऊगी, सिलैक्टेड एलीमेंट देखो आपां किहड़ी रो फिल करन लगे हुए हैं, सेकंड रो। सेकंड रो सिलैक्टेड एलीमेंट किहड़ा है 1/2, सिलैक्टेड एलीमेंट ओवर पाइवट एलीमेंट, पाइवट एलीमेंट कितना 3/2, तो 1/2 डिवाइडेड बाय 3/2 तो 1/3 आ जाऊगा जी। तो इनू हुण आपां 1/3 ना मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, ठीक है जी। तो जो रिजल्ट आउणगे आपां लिखी चलांगे स्टूडेंट्स, ठीक है। जिवें कि हुण इत्थे देखो पहला रिजल्ट दसां 60 आ गया, 60 × 7 42, ठीक है, तो 480 माइनस 60 आ जाऊगा, ठीक। एंड सो ऑन आप सारे फिल कर लांगे, ठीक है जी। जिहड़ियां वैल्यूज यानी कि S1 जिहड़ियां आलियां वैल्यूज आउणगियां ये S1 वास्ते आउणगियां, आलियां जिहड़ियां वैल्यूज आउणगियां सॉल्व होके वो X2 वास्ते आउणगियां, ठीक है जी। तो हुण स्टूडेंट्स आप वैल्यूज कैलकुलेट करके फिल कर दिए। लो भी स्टूडेंट्स हुण आपां सारा फिल कर लिया, तो ZJ निकाल दिए। वैसे मैं कैलकुलेशंस कर लिया, देखो 0 × 4/3 0, 3 × 1/3 1, 4 × 4/3 तो ये आ गया जी 4/3, तो 1 0 + 1 + 4/3 तो अपने को 7/3 आ जाऊगा। 0 × 0 0, 3 × 1 3, 4 × 0 0, आ 0 आ 3 आ 0, 0 + 3 + 0 3 आ गया जी, ठीक है। इन दिस वे स्टूडेंट्स आप सारिया वैल्यूज कढ़िया हुई ने, ये 4 आ गया, 0 आ गया, 1/2 आ गया। उस तो बाद अपना मेन काम होंदा है CJ - ZJ निकालन दा। 2 दे विचों 7/3 माइनस करांगे तो माइनस का 1/3 आऊगा। 3 दे विचों 3 माइनस किया 0, 4 दे विचों 4 माइनस किया, सो दी आ स्टूडेंट्स वैल्यू CJ दियां हुंदियां ने, आ ZJ दियां। 4 - 4 then 0, 0 - 0 0, तो 0 - 1/2 -1/2। तो देखो स्टूडेंट्स हुण सारियां वैल्यूज की आ गई, नेगेटिव एंड 0, कोई वैल्यू पॉजिटिव नहीं है, इट मीन सोल्यूशन आ चुके हैं, ठीक है। ऑल वैल्यूज ऑफ CJ - ZJ आर
सॉरी नेगेटिव और zeros, ठीक है। सो वी हैव obtained optimum solution। तो स्टूडेंट्स आप ऑप्टिमम सोल्यूशन पे पहुंच चुके हैं। सो ऑप्टिमम सोल्यूशन ਦੇ स्टूडेंट्स ਹੁਣ ਆਪਾਂ क्या करना है, दसना है कि किन्नी किन्नी प्रोडक्शन होएगी, ठीक है। तो देखो जी, लो जी, तो आप है स्टूडेंट्स आंसर x2 की प्रोडक्शन होएगी 60, x3 प्रोड्यूस होएगा 120 यूनिट, x1 नहीं आया इट मीन्स वो 0 होगा, ठीक है। सो x1 0, x2 की प्रोडक्शन होगी जी 60 एंड x3 कितना होगा 120। और ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ऑब्जेक्टिव फंक्शन सी उस दे ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ वैल्यूज पुट कर ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ मेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन सी, ठीक है जी। तो ਤੁਹਾਡਾ मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाऊगा। या स्टूडेंट ਤੁਸੀਂ ਕੀ करो, जिस वक्त ਤੁਹਾਡਾ ऑप्टिमम सोल्यूशन वाला टेबल आ गया उस वक्त ਤੁਸੀਂ क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सोल्यूशन वैल्यूज ਨੂੰ भी 0 × 60 0 आ गया, 3 × 60 कितना आ गया जी 180, 4 × 120 कितना आ गया 480, ये प्लस करके स्टूडेंट्स अपने को आ गया 660। तो जेडी चीज़ ये है दैट इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट। तो अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट है जो मैक्स जेड है वो 660 है जी, ठीक है। तो ये सी स्टूडेंट थोड़ा सिंपलैक्स मैथड, होप सो सोनू अंडरस्टैंड होया होगा। थोड़ी कैलकुलेशन जी यदी ज़्यादा हैगी है, ठीक है। तो कुछ जेडे डिसीजन ध्यान देने वाले ने वो बस आही है कि सोनू मेन चीज़ां याद रखनियां ने, पाइवट रो पाइवट कॉलम, ठीक है जी। पाइवट कॉलम तो सोनू इनकमिंग वेरीएबल पता लगता है, पाइवट रो तो सोनू आउटगोइंग वेरीएबल पता चलता है। तो जदों भी कोई टेबल तैयार होंदा है तो प्रीवियस नू देख के होंदा है, जिवें तीजा टेबल दूजे नू देख के तैयार होएगा, दूसरा टेबल पहले नू देख के तैयार होंदा है, ठीक है जी। तो ये है जी स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चन। तो होप सो सोनू समझ आ गया होएगा जी। थैंक यू भाई।